Okay. Question number 1. Write this equation in the form y is equal to mx plus c. अच्छा, y is the y coordinates, x is the x coordinates. So what about m and c? C is the constant. Okay, इसको हम constant. Okay, this is constant और इसको हम y intercept भी कहते हैं. Y intercept means कि this is the value of y when x is equal to 0. Like अगर आपका ग्राफ इस तरह आ रहा है, if the graph your graph is like this, और ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को, लेट्स से 5 पे ये क्रॉस कर रहा है x y एक्सिस को, 1 2 3 4 5 पे ये क्रॉस कर रहा है. So it means कि your c value is equal to 5. Okay, so this is the value of y intercept. Okay, this is the value of y when x is equal to 0. तो यहाँ पे देख लो x की वैल्यू आपके पास 0 है. This is the x axis, this is the y axis. So this is the y intercept, c is the y intercept, and this is the value of y when x is equal to 0. Okay, तो ये आपका जो लाइन है, ग्राफ का जो लाइन है, वो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को क्रॉस कर लें तो वो आपका c वैल्यू होगा. लाइक अगर ये इस तरह आ जाए तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि 2 पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं, तो c वैल्यू आपका 2 हो जाएगा. अच्छा, m वैल्यू क्या होगा? m इज़ द स्लोप और ग्रेडियंट जो अभी हम फाइंड कर रहे थे. ओके, सो हमारे पास दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c. Now we will need to write these equation in this form. So first part, that is x plus y is equal to 10. So the question is x plus y is equal to 10. तो हमने इस फॉर्म में लिखना है. So ये क्या हो जाएगा? y will be equal to minus x plus 10. ओके, तो अब देख लो आपकी c वैल्यू क्या होगी, कंपेयर कर लो इन दोनों को. What is your c value? C. Yes. C is 5? No, in these two equations. Oh. Comparison कर लो. Okay, wait, I don't get this. अभी ये मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई है. I know. कंपैरिजन कर लो. सी की जगह क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में? Oh, 10. 10. तो आपकी सी की वैल्यू 10 हो जाएगी. एंड एम की जगह क्या है? -1. ओके, इट मीन्स के द स्लोप ऑफ, इसका स्लोप क्या हो जाएगा जो अभी हम फाइंड कर रहे थे, स्लोप और ग्रेडियंट, वो क्या हो जाएगा? Slope is m, right? Yes, m और m हमारे पास m is minus 1. 1. तो इट मीन्स कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1. आपके पास आ गया. तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो. लाइक आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन को याद करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद करना है. और जो आपको इक्वेशन गिवन होगा, आपको इसी तरह के इक्वेशंस गिवन होंगे, तो उन्हीं इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखना है और यहाँ से आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड दी y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास फर्स्ट पार्ट में? इसमें y intercept is the c value. First part में c -10. Was 10 positive or negative? Positive. Yeah. So y intercept is the value of y intercept is 10. So what is mean by y intercept? Y is c. या y is c. अभी मैंने few minutes पहले कहा है कि ग्राफ में ये 10, the y intercept is +10. So it means कि it is the value of y axis when x is equal to 0. तो it means कि ये ग्राफ का जो लाइन है वो y एक्सिस को 10 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है. Okay.
अच्छा, नाउ पार्ट बी, 2x plus y is equal to 10. So first of all you will need to write it in standard form. 2x plus y is equal to 10. आपने इस फॉर्म में लिखना है y is equal to mx plus c. अच्छा, तो इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है. सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 2x plus y is equals to 10 will become इस फॉर्म में लिखना है आपने. okay 2x is y. नो, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी 2x को आपने Okay. राइट हैंड साइड पे. Okay, y is equals to okay, wait, y is equals to 10 minus 2x. Okay, 10 minus 2x, or you can write it like this: y is equal to minus 2x plus 10, right? Yeah. Okay, up now you will need to compare these two equations. So the m value is, m means के slope or gradient. So the slope Yeah. is, Slope is minus 2. yeah, good. Slope is minus 2. Okay, और आपका y intercept क्या हो जाएगा? The y-intercept. Oh no, sorry, 10. Yeah, that is plus 10. Okay, so your m value will be equal to, M value is minus 1. minus 1 divided by 2. Yeah. And your 5 c value will be equal to, which is the y intercept value? C is equals to 10. 10. No, sorry, 5. 5. अच्छा, पार्ट डी. Okay, your m value will be equal to, The m value will be equal to m value is minus x over 2. minus 1 divided by 2. Sorry, minus 1 divided by 2. And your c value will be equal to 5. 5 divided by 2. Okay, question number 2, that is a graph has the equation, graph equation is given to you. Show that this is the equation of the straight line. Okay, अच्छा, यहाँ पे this is the linear equation, इसको हम linear equation भी कहते हैं. ओके, Okay. एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक आपका पोलिनोमियल होता है. तो लीनियर इक्वेशन में जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनका पावर 1 होगा. ओके, Okay. जो वेरिएबल्स होंगे उनका पावर क्या होगा? 1. 1. क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर क्या होता है? 2 होते हैं. और पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर ग्रेटर देन 2 होते हैं. ओके, अच्छा, यहाँ पे देख लो तो x इज़ द वेरिएबल, x का पावर क्या है? 1 है. y इज़ द वेरिएबल, y का पावर क्या है? 1 है. सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन. और इसको अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो क्या होगा? वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज गिव यू स्ट्रेट लाइन. गॉट इट? Okay. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले पढ़े थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या था, याद है आपको? इस तरह का इक्वेशन होता नहीं. था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इस तरह के इक्वेशन हमने पढ़े थे पहले, जो मैंने आपसे कहा था कि दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो आपके पास एक आ जाए. और जो हमने किया था, याद नहीं है आपको? वो याद है. या तो दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको मैं क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता था? बिकॉज इन दिस केस द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2. यहाँ पे देख लो, Yeah. जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है. सो इफ़ द पावर इज़ 2 तो वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसको अगर आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो ये आपको कर्व लाइन देगा. ओके, ओके, ये स्ट्रेट लाइन नहीं Okay. देगा आपको, कर्व लाइन देगा. अच्छा, पोलिनोमियल कुछ इस तरह होता है कि एक्स क्यूब
मोर देन पावर जो मोर देन 2 हो, तो एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। ओके, यहाँ पे आपका जो पावर है दैट इज़ ग्रेटर देन 3 आ रहा है। यहाँ पे देख लो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ओके, सो ठीक है। जो यहाँ पे देख लो ये इक्वेशन मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और इसके जो पावर है दैट इज़ 1, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन, एंड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आप ये कह सकते हो, इन्होंने कहा शो दैट दिस इज दिस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, थ्योरेटिकली आप दे सकते हो, या इफ़ यू वांट टू गिव मैथमेटिकली तो आप इस ग्राफ को ड्रा कर लो। ओके, स्ट्रेट लाइन आपका आएगा। Okay. अच्छा, सेकेंड पार्ट इज फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ओके, ग्रेडियंट फाइंड करने तो क्या करना होगा, दो मेथड्स हैं। अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़े हैं। एक पहले मेथड था, और वो मेथड्स यही था कि हमने x और y की वैल्यूज़ लेनी है अपनी मर्ज़ी से। x की वैल्यूज़ दो आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, और y की वैल्यू 0 and 1. या y की वैल्यू आपने उसी के अकॉर्डिंगली फाइंड करना है। वो फर्स्ट मेथड था। Okay. अब सेकेंड मेथड हमने इसी यहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो सेकेंड मेथड के थ्रू कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी है। सेकेंड मेथड में क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, Oh. y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। Y is equals to 2x minus 5. Yeah. ओके, सो आप कंपेरिजन कर लो, Y स्लोप is क्या हो equals जाएगा, to slope 2. yes that is 2. Okay, so the gradient will be equal to 2. Yeah. Draw a graph of the line. So if you want to draw a graph, तो क्या करना होगा, okay, this is the x value, this is the y value. Okay, so this will be 0, 5, 10, 15, 20. This will be minus 5, minus 10, minus 15, minus 20. If x is equal to 0, तो y क्या हो जाएगा, Okay. I can't draw the graph through. x is equal to 0, तो आपका y वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस 5। तो if x is equal to 0, तो y वैल्यू इज माइनस 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। if x is equal to 5, तो y की वैल्यू भी 5 होगी। if x is equal to 5, तो y की वैल्यू भी 5 होगी, ये पॉइंट आ जाएगी। if x is equal to 10, तो y की वैल्यू 15। if x is equal to minus 5, तो y की वैल्यू minus 15। इसी तरह इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और ग्राफ को आपने ड्रॉ करना है। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर लें एक दूसरे को, तो वो आपका इसका इक्वेशन होगा। यहाँ पे देख लो, तो क्या करना है, आपने उसी तरह ग्राफ ड्रॉ करने हैं दोनों इक्वेशन के। ओके, सिमल्टेनियस इक्वेशन में दो इक्वेशन आपको गिवन होंगे। एक इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे 0.5x प्लस 4, सेकेंड इक्वेशन इज़ 2.5x माइनस 3। ये दो इक्वेशन आपको गिवन होंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने ड्रॉ दी टेबल, उसी तरह टेबल ड्रॉ करना है। ओके, और अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू लेनी है। वहाँ पे हम क्या लेते थे, 0 लेते थे, 5 लेते थे, 10 लेते थे, यहाँ पे -5, यहाँ पे मैं -10 लेता। तो अब ये वैल्यू ले लिया करो। उसके बाद आप इन y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो थ्रू यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, फिर दूसरे y की वैल्यू फाइंड कर लो यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर क्या करना है, दो इक्वेशन है तो 2 लाइन्स है, दिस इज़ फॉर लाइन 1 एंड दिस इज इक्वेशन इज़ फॉर लाइन 2। तो लाइन 1 को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ओके, ये वैल्यूज़ आपने लेने हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है इस तरह, और ये लाइन आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह सेकंड लाइन
सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपका ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा, यहाँ पे देख लो। ओके, तो इस तरह ये दो लाइंस आपके बन जाएंगे। सो जिस पॉइंट पे ये Okay. क्रॉस कर लें, ओके, ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे क्रॉस कर ले एक दूसरे को, तो वहाँ पे जो x की वैल्यू ले होगी वो आपने लेने, और वहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो आपने लेने। सो यहाँ पे देख लो, तो x की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 3.5, ओके, और y की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 5.8। सो इट मीन्स कि इफ़ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, दैट्स विल बी 3.5, और y की वैल्यू आपके पास 5.8 आ जाएगी। Okay, it means the solution of these two equation is this one. समझ आ गया आपको? No. नो? ओके, क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी तरह लाइंस ड्रा करने ग्राफ पेपर पे जिस तरह आप अभी ड्रा किए आपने। ओके, इस तरह के लाइंस आपने ड्रा करने। तो दो इक्वेशंस है, तो इट मीन्स कि दो लाइंस होंगी। एक आपका ये लाइन हो गया, Okay. दूसरा आपका ये लाइन हो गया। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर ले, तो वो आपका x की वैल्यू क्या है वो आपने ढूंढना है, दैट इज़ 3.5, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज़ 5.8। तो आपने लिखना है कि सोल्यूशन, आपने बस सिंपल इस तरह लिखना है, सोल्यूशन विल बी इक्वल टू x की वैल्यू इज़ 3.5, y की वैल्यू इज़ 5.8। सो ये आपने इस तरह लिखना है, दिस विल बी द आंसर। Okay. ओके, अगर ये स्टेट, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि सॉल्व द इक्वेशंस, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन, तो फिर आपने ये मेथड फॉलो करना है। ओके, सो दिस द इक्वेशन विल बी दिस वन, 0 minus 5 minus 10 this will be 5, this will be 10। Okay. अब क्या करना है आपने एक इक्वेशन को ले लो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ओके, इस इक्वेशन के लिए आपका if x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। if x इज इक्वल टू 5 तो फिर y क्या हो जाएगा, तो वो सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने इसका लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, जो हम अभी कर रहे थे। लेट से आपका जो Okay. लाइन है वो इस तरह आ गया। अब क्या करना है आपने ये इक्वेशन लेना है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब सेकंड इक्वेशन लेना है। इसके लिए आपने इस तरह, दिस विल बी x, दिस विल बी y। सो ये आपका if x इज इक्वल टू 0 तो y -4 हो जाएगा। इसी तरह आपने ड्रा करना है, 5 10 ले लो, -5 -10। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएंगे तो वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है इस टेबल को यूजिंग दिस इक्वेशन। उसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ पे ड्रा करना है। लेट से वो लाइन आपका इस तरह है। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों लाइंस एक दूसरे को, तो वहाँ पे आपने इसकी x वैल्यू क्या है यहाँ पे देखना है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, और y की वैल्यू क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ओके, उन्होंने कहा कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, सो दिस विल बी द आंसर।